اب سب کے سامنے ہے. عمران خان صاحب جو کورونا کے پیک پہ لاک ڈاؤن کا مخالفت کرتا تھا، آج اس کو کورونا کا خیال آ چکا ہے. میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں پہ ریڈز کیے جا رہے ہیں، FIR کاٹے جا رہے ہیں. گجرانوالہ کا ہمارا جو سٹی پریزیڈنٹ ہے، دار صاحب ہے، اس کے گھر پہ حملہ ہوا. اعجاز سما صاحب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ گجرانوالہ پہ بھی FIR کاٹا گیا. ہمارا آصف بھاگت صاحب کا مندی بھاؤڈین کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے، اس کا گھر کا، اس کا تو پورا گاؤں کا گھیراؤ کیا گیا. یہ آپ کو ذرا ایک اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہو کہ وہ جو وزیر اعظم کہتا تھا، اس نے اپنا پہلا سپیچ میں کہا تھا کہ احتجاج کرنا چاہتے ہو، دھرنا دینے چاہتے ہو، ہم آپ کو کنٹینر دیں گے، ہم آپ کو کھانا دیں گے. اس نے تو ہمارے راستے میں کنٹینرز رکھ لیے ہیں. مگر کان کھول کے سن لے خان صاحب، آپ بھوک پہ FIR نہیں کاٹ سکتے، آپ بے روزگاری کو قید نہیں کر سکتے، آپ عوام کے ناراضگی کو، عوام کے جذبات کو نہیں قید کر سکتے. اور انشاءاللہ تعالی آج رات گجرانوالہ میں پاکستان کے عوام کا سمندر آپ کو جواب دے گا کہ وقت آ چکا ہے اس کٹ پتلی کو، اس سلیکٹڈ کو، اس نالائق کو، جس نے ہمارا عوام کا جینا حرام کر دیا، جس نے ہمارا کسان کا جینا حرام کر دیا، جس نے ہمارا مزدور اور نوجوان کا جینا حرام کر دیا، اس کا جانے کے وقت آ چکا ہے. ہم پورے پاکستان کے عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ بنیں، اور یہ جو مذاق پاکستان کے ساتھ 70 سال سے چل رہا ہے، جو جمہوریت کو نہیں چلنے دیتے، جو عوام کی طاقت کو نہیں مانتے، آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ بن کے اس سوال کا آخری جواب دے دے کہ پاکستان جمہوریت بنے گا، پاکستان کے عوام غلام نہیں، آزاد شہریوں ہے، ان کے حق ہے، ان کے حقوق ہے، ان کے آپ کو ان کے جو مینڈیٹ ہوتا ہے، جو ان کا آواز ہے، جو ان کا طاقت ہے، آپ کو ماننا پڑے گا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 2020 میں بھی غیر جمہوری جو کوششیں ہیں وہ آج بھی جاری ہیں. ایک جلسہ برداشت نہیں ہوتا. اور گلگت بلتستان میں جہاں الیکشن ہو رہا ہے، گلگت بلتستان میں جہاں الیکشن ہونے جا رہا ہے، وہاں بھی پری پول ریگنگ شروع ہو چکا ہے. وہاں اگر گلگت بلتستان میں دھاندلی ہوئی، میں آج سے وارن کر رہا ہوں، اگر گلگت بلتستان میں دھاندلی ہوئی تو پاکستان کا سب سے زیادہ یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. گلگت بلتستان گوادر کا گیٹ وے ہے. اس قسم کا دھاندلی ہم برداشت نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں، میرا کینڈیڈیٹ ہے نگر سے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے جاوید حسن صاحب. اس کو وہاں کا ٹرائیبیونل ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم ہر فورم پہ چیلنج کریں گے. یہ نگر میں 2 بھائی ہیں، ایک ہمارا جاوید حسن صاحب ہے اور ایک اس کا بھائی ہے. جاوید حسن صاحب اور اس کا بھائی ایک ہی کمپنی میں ہیں، اور جاوید حسن اور اس کا بھائی دونوں الیکشنز بھی لڑ رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ ایک بھائی پیپلز پارٹی سے اور ایک بھائی PTI سے. تو پیپلز پارٹی کا امیدوار جو اسی کمپنی اسی بھائی کے ساتھ ہے، وہ تو نااہل، اور PTI کا امیدوار کو لڑنے دے رہے ہیں.
یہ تو وہی ٹریلر ہے جو ہم نے 2018 میں دیکھا. ہم یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے. ہم پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی پہ، سی پیک پہ، گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. اور میں آج آپ سے وارن کر رہا ہوں، میں خود جا رہا ہوں گلگت بلتستان، میں ہر علاقہ میں جاؤں گا، میں آپ کا الیکشن کو خود مانیٹر کروں گا، اپنا کیمپین کو خود لیڈ کروں گا. اور اگلی داندلی ہوا، عوام کی آواز نہیں مانا گیا، عوام کا مینڈیٹ نہیں مانا گیا، تو ہم الیکشن کے دوسرا ہی دن گلگت بلتستان سے اسلام آباد پہنچیں گے. اسلام آباد میں گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ بیٹھ کر احتجاج کریں گے کہ آپ ان کے حقوق پہ سودا نہیں کر سکتے. پریس کانفرنس میں نعرے نہیں لگاتے. بات کر رہے ساتھیوں، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ جدوجہد لڑتے ہوئے جمہوریت کے لیے، انصاف کے لیے، صاف و شفاف الیکشنز کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد ہم 3 نسلوں سے لڑ رہے ہیں. 3 نسلوں سے لڑ رہے ہیں. ہم نے اپنے قیادت سے لے کے کارکن تک کی قربانی دے چکے ہیں. اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ قربانی ہم نے کافی دیا ہے. اب آپ کو ہمارا خون کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا اور جمہوریت کو بحال کرنا پڑے گا. کوئی اور طریقہ نہیں ہے اس ملک کے عوام کا مسائل حل کرنے کے لیے. آپ کا شکریہ. بلاول صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے. ہم نے تو حکومتوں کے خلاف بھی تحریک چلی. آخری مارشل لاء لگا جب محترمہ بینظیر بھٹو اور دیگر اتحادی نواز شریف کے خلاف جی ڈی اے اور رفائی اتحاد بنا کر تحریک چلا رہے تھے. کراچی میں مارشل لاء لگ گیا. اب بھی یہ سگنلنگ ہو رہی ہے کہ اس کی قسمت آئے گی. کیسے یقینی بنائیں گے کہ ملک میں مارشل لاء نہ لگے، سسٹم ڈیریل نہ ہو، اور جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انصاف بھی مل جائے اور نئے انتخابات بھی ہوں، یہ کیسے ممکن بنائیں گے؟ چیئرمین اسی میں ایک دلی لے لیں. ایک سوال اگر میں لے سکتا تو بہتر ہوگا. امداد سمرو صاحب، آپ جانتے ہو کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے کہ پاکستان ایک جمہوری ریاست ہوگا، پاکستان کے عوام آزاد ہوں گے، ان کے آئینی حقوق ہوں گے. اور ان کا وعدہ جو قائد اعظم کا وعدہ تھا، ہم آج تک اس وعدہ کو پورا نہیں کر سکا. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا، عوام کو آواز دیا، محنت کش کو حقوق دیا، اس کو شہید کر دیا گیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے عوام کی آواز بنی، پارٹی کی پرچم بلند کی، جمہوریت کی جدوجہد لڑی اور اس کو شہید کر دیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ اس جمہوریت کی جدوجہد میں قیمت بہت بھاری ہے، اور ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ اس ملک کو، میرے نوجوان کارکنوں کو اس آمرانہ دور کو پھر سے نہیں دیکھنا پڑا. اور ہم کبھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ضیاء الحق کے وقت میں ہوتا تھا وہ پھر سے ہو جائے. مگر ساتھ ساتھ ہم یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے کہ ایک سلیکٹڈ کے نام پہ، ایک کٹ پتلی کے نام پہ ایک جعلی جمہوریت چلایا جائے گا. ہم سمجھیں گے کہ یہ ہمارے کارکنوں کے ساتھ، جنہوں نے کوڑے کھائے ہیں، جنہوں نے جانیں دی ہیں، ان کے خون کے ساتھ ناانصافی ہوگا کہ ہم اس کٹ پتلی، نالائق، نااہل سلیکٹڈ حکومت کو جمہوری مانیں. ہم اس لیے اس تحریک پہ نکلے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان سلیکٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کاروں کو جب عوام کا طاقت ان کو نظر آئے گا، عوام کے مطالبات نظر آئیں گے، تو وہ عوام کے مطالبات پہ مانیں گے، جمہوریت بحال کریں گے، سلیکٹڈ کا سہولت کار بننا بند کریں گے تاکہ ہم عوام کا مسائل حل کر سکیں. لالہ موسیٰ میں
یہ लाला मूसा के मकामी साहब प्रेस क्लब की तरफ से वेलकम करते हैं, कुछ आमदीद कहते हैं। थैंक यू भाई। मियां साहब ने जो एपीसी के पहले इजलास में जो तकरीर की थी कि हम इमरान को लाने वालों के खिलाफ हम लड़ेंगे, आप इस बयानिए से मुतफिक हैं? दूसरा कि आज कौमी असम्बली का और सेनेट में इजलास भी उन्होंने रख लिया, वो कोई कानून पास कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप बताएं। जो कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज बुलाया गया है, ये फिर से एक मजाक हो चुका है। हमारा पार्लियामान को जो सबसे बड़ा फोरम है जहां अवाम का मसाइल हल होना है, वहां उनको उस इदारा को इज्जत नहीं दिया जा रहा है। आपने देखा किस तरीके से ज़बरदस्ती धांधली करवा के फैटिफ का लेजिस्लेशन पास करवाया गया, और इमरान खान चाहता है कि हमारा पार्लियामान, हमारा नेशनल असेंबली उसका जलसा गाह बने, और वो इतना बुज़दिल है कि वो सिर्फ तकरीर करता है जब मैं मौजूद नहीं हूं, वो सिर्फ तकरीर करता है जब अपोजिशन के डेस्क खाली है। तो आज भी शायद यही उसका कोशिश होगा। वादा तो किया था कि हर वेंसडे में आऊंगा, आपका सवाल का जवाब दूंगा। आज तक एक सवाल का जवाब नहीं दिया। वादा किया था कि ये जमहूरी तरीके से चलेगा। आज तक एक इसने जमहूरी रवायत कायम नहीं रखा है। और स्पीकर साहब को, इमरान खान को इस हमारा जो पार्लियामान है इसको जलसा गाह में इस्तेमाल करने को इजाज़त नहीं देना चाहिए, जबकि हमारा पार्लियामान का सेशन 19 अक्टूबर पे वैसे ही बुलाया जा रहा है। अगर वो खसूसी तौर पे इमरान खान के लिए 16 पे हमारा नेशनल असेंबली सेशन इसलिए बुलाएगा ताकि वो जलसा का तकरीर कर सके, तो वो अपना कुर्सी का, अपना ओहदा का भी तौहीन करता है। तो इस पे हम मज़ाहमत भी करते हैं। जहाँ तक इमरान खान के लाने वालों के ख़िलाफ़ जो जदोजहद हमने लड़ना है, हमने हमेशा, आज से नहीं, कल से नहीं, पिछले 5 साल से नहीं, हमारे पार्टी की बुनियाद से लेके आज तक हमारा यही जदोजहद है, यही हमारा कोशिश रहा है कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शंस हो, कि इस मुल्क में हर इदारे अपना ही काम करे, कि हमारा फौज को पोलिंग स्टेशंस के बजाय हमारा बॉर्डर्स पे होना चाहिए, हमारा चीफ जस्टिस और जजेस को डैम्स बनाने के बजाय हमारा आवाम को इंसाफ दिलवाना चाहिए, और हमारे सियासतदानों को अपने आप को, अपने इदारों को मजाक बनाने के बजाय हमारे अवाम का मसाइल हल करना चाहिए। ये हमारा मौका है। ये बताइए कि पीडीएम की जो तहरीक है, एक मकसद तो उसका हुकूमत का खात्मा है, लेकिन इसके बियॉन्ड क्या मकासद है बाकी, मतलब वो भी अगर पब्लिक के सामने हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारा जो मकसद है, हमारा जो मुतालबात है, वो पब्लिक के सामने है। वो हमारा एपीसी का जो डॉक्यूमेंट है, जो एपीसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बुलाया था, जिस पे सारे जमातें ना सिर्फ इकट्ठे हुए मगर हमारा जॉइंट रेजोल्यूशन निकला था, और उसमें हम बिल्कुल वाज़ेह हैं कि हमारा टारगेट्स क्या है, हमारा गोल्स क्या है, और हम उसी रास्ते पे चले हैं जो ARD और CRD और COD का मिशन था, जो MRD का मिशन था, और आज हम इस सिलेक्टेड निज़ाम के खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पे उसी तरीके से चल रहे हैं। जो गुप्ती तर्जुमान है वो गाँव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, लेकिन पीडीएम जलसे में फैजुल हसन चौहान का कहना था कि ये जो इन्होंने स्टेज जो है आधे ग्राउंड में लगाया है, इस पर आपका क्या कहना है? कौन? फैजुल हसन चौहान का कहना था कि जो स्टेज मैं नहीं जानता हूँ ये कौन है। आधे ग्राउंड में लगाया और कुर्सियों में काफी ज्यादा है। अच्छा, मैंने तो ये सर मैं तो अभी तक मैंने खुद जलसा नहीं देखा, मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कल हमें सियालकोट से लेके लाला मूसा पहुंचने में 3 घंटे लगे थे। आपको पता है कि ये रास्ता इतना लंबा नहीं है। मरियम शरीफ साहिबा भी लाहौर से निकल रही है, मौलाना फजल रहमान साहब भी अपना काफिला का क़यादत कर रहा है। मैंने सुना था कि कल रात से हमारा जलसागाह तो भर गया है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान को नजर आएगा कि पूरा पाकिस्तान एक तरफ है, पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे गुजरेवाले में हैं, और एक आदमी एक तरफ इस्लामाबाद में बैठा है।
फैसला अवाम को करना पड़ेगा, अवाम को करना पड़ेगा कि उनके मसाइल कौन हल कर सकते हैं। साहब, जब भी कोई तनाज़ा पैदा होता है तो उसका हल बातचीत के जरिए होता है। अपोजिशन में किस पार्टी को ये मैंडेट हासिल है कि कोई ऐसी नौबत जब आएगी तो वो बातचीत करेगी? हमने उसी नौबत का या ऐसे कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ है, बट आई डू एग्री विद यू कि हम जमहूरी लोग हैं, हमारे पास कोई बंदूक नहीं है, तो जहां एहतजाज, जहां धरना, जहां पार्लियामान में जो हमारा प्रोसीजर्स, वो सारे के सारे हमारा जमहूरी टूल किट के टूल्स है, तो डायलॉग भी जमहूरियत की और जमहूरी टूल किट की एक टूल है जो जमहूरी पार्टीज अपनाते हैं। बिलावल साहब, ये डायलॉग उन इदारों से होगा जो अपने दायरा कार से बाहर निकल गए हैं, या वो जिनको आप सिलेक्टेड कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? सब खैरियत से हो? आप इधर आए हो? अभी मैंने आपको देखे हैं। देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ ये हमेशा से रहा है, हम पार्लियामान का एहतराम करते हैं। हम इसका सोच ही नहीं सकते कि हम पार्लियामान को घर भेजें। हम चाहते हैं कि सारे के सारे जमहूरी तरीके अपनाया जाए, हम अपना एहतजाज का तरीका अपनाया जाए, हम अपने नो कॉन्फिडेंस के जो जमहूरी टूल्स, आइनी लीगल टूल्स अवेलेबल है, चाहे वो पंजाब के असेंबली में हो या नेशनल असेंबली में हो या स्पीकर साहब के खिलाफ हो या वजीर आजम के खिलाफ हो, वो सारे अपनाया जाए, वो सारे एग्जॉस्ट किया जाए। फिर हम इस किस्म के, अगर हम नाकाम तब भी रहे, फिर हम इस किस्म के एक्सट्रीम पोजीशंस पे भी मजबूर होकर सोच सकते हैं। आज हम भी इस्लामाबाद से आए हैं। इस्लामाबाद से लेके लाला मुर्तज़ा तक रास्ते में सिर्फ एक जगह पर हमने पीपल्स पार्टी का कैंप देखा और एक जगह पर हमने नून लीग का कैंप देखा। कोई कैंप नहीं था, कोई बैनर हमने नहीं देखे। ऐसी तहरीकों में अमूमन बैनर। मैं आपको बस आपका बहुत शुक्रिया। मैं एक एडवाइस दूंगा आपको कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए या कवर करने के लिए एक दिन से पहले ज़रूर पहुंचा जाए, और फिर आपको नज़र आता कि ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के कारकुन मगर नून लीग के कारकुन पूरा पंजाब में बैनर्स, पोस्टर्स, फ्लैग्स, कैंप्स तो लगाते रहे, लेकिन उनके पीछे पीछे वो गैर सियासी पंजाब की पुलिस, जिनके 6 IGs तब्दील हो चुके हैं, वो उनके पीछे पीछे इमरान का टाइगर फोर्स बन के FIRs काट रहे हैं, बंद कर रहे हैं। लेकिन आपको नजर आएगा, आपको गुजरांवाला में नजर आएगा, अब रास्ते में नजर आएगा कि पाकिस्तान के अवाम कहां खड़े हैं और इमरान खान कहां खड़ा है। एक मिनट यार, एक मिनट, इस तरह नहीं। ये तो हुकूमत अब इतना बुखला चुका है, इतना हिल चुका है, और हमारा पहला जलसा भी नहीं हो चुका है, पहला जलसा भी नहीं हो चुका है। और अब खुद कह रहे थे कि हर दिन कोई हुकूमती रहनुमा टीवी पे है, इमरान खान दूसरा स्पीच करके कहीं जाके रो रहा है, बुखलाहट का शिकार है। अगर कोई टॉपिक है तो PDM का जलसा, अगर हुकूमत का एजेंडा है, वो तो नहीं कह रहे कि हम महंगाई को कैसे कम करें, बेरोजगारी को कैसे कम करें, अवाम के मसाइल को कैसे हल करें। अगर इमरान खान की ज़हन में कुछ है, वो PDM है, वो पीपल्स पार्टी है, वो मुस्लिम लीग नवाज है, वो मौलाना फजल रहमान है, तो हम समझते हैं। कल एक खातून है लेके फिर हार्ड लाइन्स पहले मौलाना फजल रहमान साहब लेते रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज बीन ऑन पे अपनो आइडियोलॉजी और इस तरह की जमात रही है। आपको लगता है कि कहीं इस सारी मूवमेंट में बैकफायर भी कुछ चीज हो सकती है? हैव यू थॉट ऑफ दैट हार्ड लाइन्स जो आप हमेशा लेते रहे हैं, कैसे आप वो डिस्टिंग्विश करने का प्लान? I think that the balancing act for the Pakistan People's Party is far more difficult and challenging, and I think that's because the Pakistan People's Party has a particularly heavy legacy to carry, and we are the only political parties whose founding qiyadat was assassinated, adalti qatl hua isi लड़ाई में, जिसके दूसरा फिर क़यादत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इसी लड़ाई में शहीद हुआ। हमने ये मुसलसल देखा है, आज भी नहीं लेकिन माजी में भी देखा कि एहतजाज भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ हुआ, PMA का मुहिम चला, लेकिन जब सियासी फैसला भी हो चुका था, गैर जमहूरी कदम,
फिर भी उठाया गया। हम तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये हमेशा कोशिश रहा है, आगे भी रहेगा, कि जैसे हम इस जमहूरियत को बहाल कर सकते हैं, कैसे हम अपने अवाम के जो हुकूक उनका आइन में उनको गारंटी करते हैं वो हम दिलवा सकते हैं, वो हमेशा हमारा जिद्दोजहद होगा। लेकिन हम कभी भी नहीं अपना जो पर्सनल विक्ट्री के लिए या कि कोई शॉर्ट टर्म गेन के लिए इस सिस्टम को नुकसान पहुंचाने देंगे, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने देंगे। और आज भी हम समझते हैं कि हमें हमेशा मुसलसल कोशिश करना चाहिए कि जमहूरियत की बेहतरी के लिए, मगर जितना भी कमज़ोर, जितना भी टूटी फूटी आपकी रही जमहूरियत है, आमरीत से तो बेहतर है। राजा साहब सॉरी डियर राजा साहब, ये सवाल है कि जो पीडीएम के मूवमेंट है जब ये आगे बढ़ेगा तो ये अवाम में ये राय है कि ये इसको लीड कर रही है सियानिया को मिलेगी, तो आप क्या समझते हैं पंजाब में इस राय के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो वफाक में आप उस सतह पे जा सकेंगे कि अगली बारी नून लीग लेगी या पीपल्स पार्टी? और दूसरी तरफ इदारों के साथ भी टकराव हो रहा है इसके साथ साथ, तो इस सिनेरियो में आपका क्या आगे जो है वो तरीकाकार होगा, वे फॉरवर्ड क्या होगा? जहाँ तक बयानिया है, हम सब अवाम की बयानिया लेके निकले हैं और साथ साथ हर जमात का अपना मंशूर भी है, हर जमात का अपना मंशूर भी है, और हमारा मंशूर इन इश्यूज़ पे जिनके लिए हम आज चल रहे हैं वो तो 1970 से लेके आज तक वही है, और 1970 से लेकर अब तक वही है। हम चाहते हैं कि हम जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से ये जो जिद्दोजहद है ये इसमें हम कामयाब रहें। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इमरान खान के सहूलतकार को ये एहसास होगा कि पाकिस्तान पे जो नुकसान हो रहा है, अवाम जो बोझ उठा रहे हैं, इमरान खान इज़ नॉट वर्थ इट। डेमोक्रेसी, our country, our society is at stake, and हमें सब मिलकर इसका हल करना है, और उसका हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है। यूनुस साकी साहब, एक मिनट जी मेरे भाई। हेलो, आप बैठे। यूनुस साकी साहब, अब हम एहतजाजी इत्तेहाद है। जब ARD भी बना था तब भी हम एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शंस लड़ रहे थे, और आज हम पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए एक पेज पे खड़े हैं, सिंगल पॉइंट एजेंडा पे, और कल हम आमने सामने होंगे, इलेक्शंस भी लड़ रहे होंगे। ये जमहूरियत का तरीका है, ये जमहूरियत का एक रवायत है, और पाकिस्तान में मुख्तलिफ जमातों हैं जिनका अपना मंशूर है। मौलाना फजल रहमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, ANP, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, कौमी वतन पार्टी, हमारा सबका अपना मंशूर है, अपना तारीख है, मगर एक पॉइंट एजेंडा पे कि हमारे मुल्क में जमहूरियत को बहाल होना चाहिए, हमारा अवाम को आज़ाद करवाना चाहिए, अवाम को जो हुकूक हमने वादा किया है आइन में उनको दिलवाना पड़ेगा। उस हद तक हम सब एक है। When we have the rules of the game are fair, when election rules are fair, when parliament is fair, when our system is fair, तो फिर हम आमने सामने भी लड़ेंगे। एक मिनट, आपकी तरफ आ रहे हैं साकी साहब, यूनुस साकी साहब। अच्छा चले, एक आपका सवाल है साकी, चीमा साहब मैं बताता हूँ, आप लोकल लाला मूसा के हैं, आपका हक है, बिल्कुल आपको सवाल देते हैं। यूनुस, एक मिनट भाई, बेटा आपका काम नहीं है, यहाँ प्रेस की बातें हो रही हैं। मेरे कारकुनों पे जुल्म हो रहा है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं, पुलिस ब्रूटैलिटी, आम आदमी, अगर आपने जुल्म करना है तो हम सब हैं, बड़े बड़े कायदीन आपके सामने हैं, मगर आप हमारे गरीब कारकुन पे इस किस्म का जुल्म, बस कर तरीके इंसाफ उसका नाम है, ये नहीं होना चाहिए। सॉरी भाई, गवर्नमेंट goes back on what? अगर इमरान खान हुकूमत पीछे हटती है तो अपोजिशन की क्या हिटमिली होगी इसके बाद?
सॉरी सर कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट स्टेप डाउन कर जाती है तो फिर अपोजिशन की फिर क्या अगली असेंबली होगी? फिर अपोजिशन को अवामी हुकूमत बनाना पड़ेगा, जिसमें हम इलेक्शन रिफॉर्म्स फोरम करके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा के अवाम को फैसला करने दे कि उनके हुक्मरान कौन होंगे, उनके मसाइल कौन हल करेंगे, उनके नुमाइंदे कौन बनेंगे। जी चीमा साहब आप चीमा साहब बताओ लो, चीमा साहब नहीं, हम सर अगर हम अपना एजेंडा पे, अपना मकसद पे कामयाब होते हैं, जमहूरियत बहाल होता है, इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज तो आमने सामने इलेक्शंस लड़ेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF भी आमने सामने इलेक्शंस लड़ेंगे। ये तो हमेशा ऐसे ही रहा है। जी अफजाल पटी साहब आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हुआ पहला आपका सवाल कि आपने तमाम अदारों का कि अपने हदूद में रह के काम करें। नहीं लेकिन पिछले अखबार में जब साबिक अखबार में कोई जो एहतजाज है वो गुजरांवाला खत्म हो जाता था, कोई इस्लामाबाद खत्म हो जाता था, तो काइंडली जब आप तमाम मुतहदा अपोजिशन इकट्ठी हो गई तो ये एहतजाज कहाँ खत्म होगा? हमारा एहतजाज हमारा जो प्लान है जो हमने आपके सामने रखे हैं उसका वाज़ेह एक स्केड्यूल है, जिसमें अगर हमारे मुतालबात एक हद तक, एक वक्त तक नहीं पहुंचे तो हमारा रुख तो इस्लामाबाद ही होगा। लेकिन मैं समझता आप इस हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो कि हमें तो इस्लामाबाद तक पहुंचना नहीं पड़ेगा, इस्लामाबाद से बहुत ही पहले ये हुकूमत घर चले जाएगी। थैंक यू।